Okay, good morning, everyone. Yesterday we have done till Schiff's base reactions. Okay, I have given you the heading that how to use the Schiff's base, that is nucleophilic addition elimination of aldehydes with ammonia derivative. So in that we have to study 7 different reactions. What is the first one? Okay, in that only the first one I'll write down like this. First one is your ketone. Suppose I'm taking over here any ketone or aldehyde, anything you can take. R dash double bond O. This is my ketonic group. I can also use aldehyde group also. I will use here NH2OH. This is called as hydroxyl amine. Okay, it is called as hydroxyl amine. Now what will happen in the whole reaction? Just remove this water molecule H2O. Okay, remove this water molecule. What will be your product now? It is R dash double bond will be as it is NOH. But what I have removed over here plus water. What is the name of this compound? This is called as oxime. Okay, in the whole process, whole derivatives, we are going to remove. Just a minute. Let me put a book. In the whole process, every reaction, you are going to remove your this thing. What? Water. Okay? Second reaction. If I'm going to use here, suppose again R, this time I have taken aldehyde, double bond O, plus this is NH2NH2. It is called as hydrazine. Okay? Now we are going to remove this water. चलो अभी क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ऐसे ऐड हो जाएगा. RH डबल बॉन्ड N NH2. तो हाइड्राजिन का क्या बन जाता है? हाइड्राजोन. ठीक है, जिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू zone. This is the second reaction. ठीक है, third one. I will take suppose again ketone R dash double bond O plus I will use over here NH2 NH C6H5. Now what is the name of this compound? It is called as phenylhydrazine. ठीक है, its name is phenylhydrazine. बताओ क्या होएगा? We'll just remove the water and your product will be CR dash double bond N NH C6H5. So what is the name now? That is phenyl hydrazone. ठीक है, हाइड्रोजन का क्या बन गया? हाइड्रोजोन. ठीक है, एकदम सिंपल रिएक्शन है. एंड एवरी टाइम यू आर गोइंग टू रिमूव योर वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन. I'll just write down all the reactions together, then I'll give you some examples, you also solve. ठीक है, चलो ये हो गया अभी R dash double bond O. This is my ketone again, correct? Then I am going to put over here NH2 NHCO NH2. क्या हो जाएगा अभी? Just remove the water. What is the name of this compound? It is semi carbazide. ठीक है, तो हो जाएगा R dash double bond N NHCO NH2. What is the name? It is called as semi carbazone. इजी है रिएक्शंस, एकदम बहुत इजी है. खाली आपको याद रखना है कि क्या यहाँ पर फॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट इज लास्ट रिएक्शन R dash double bond O. You can take aldehyde also plus 2,4 diphenyl hydrazine लेना है, तो it is NH2 NH. ठीक है, then there will be a ring like structure. This is NO2. Here also NO2. ठीक है, इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन. क्या करेंगे? Move the water H2O.
and combine the product R double bond N NH, बाकी सब सेम रहने वाला है, ठीक है. Your structure will remain same. So it is NO2. Here also it is NO2. अब इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से. 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन. 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन. समझा. So this is called as nucleophilic addition elimination reaction, क्योंकि एक ऐड हो रहा है और वाटर रिमूव हो रहा है. इसको बोलते हैं 2,4 बोलते हैं डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, डीएनपी. शॉर्ट फॉर्म है डीएनपी. इजी था रिएक्शन ये. अंडरस्टूड एवरीबॉडी व्हाट हैज हैपेंड मिस ओवर वहां हियर. पर जोन यू क्यों आर आया? गोइंग टू यूज डिफरेंट. वो उसका नाम है बच्चा. इट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम जिन टू जोन. इट्स अ नेम. ठीक है. आईयूपीएसी नेम है वैसा उसका, क्योंकि वो इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स है वो. ठीक है. देखो अभी कैसे हो गया, वापस से बताती हूँ. हाइड्रोक्सिल का क्या बन गया, ऑक्साइन. ये फंक्शनल ग्रुप है ना. N double bond NC double bond NOH, it is called as oxime. So double bond NH2 is called as hydrazone. फिर डबल बॉन्ड NNH इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्राजोन. ये सेमी कार्बाजाइड तो सेमी कार्बाजोन. डाइफिनाइल हाइड्रोजन डाइफिनाइल हाइड्रोजोन. क्लियर. अभी आपको एग्जाम में कैसे देंगे, दे में गिव यू डिफरेंट कंपाउंड्स ओवर हियर. सपोज कीटोन दे दिया यहाँ पे एल्डिहाइड दे दिया, फिर कोई दूसरा कीटोन दे दिया, तो यू हैव टू जस्ट रिमूव द वाटर एंड राइट ऑन द प्रोडक्ट. इज इट वेरी इजी. अंडरस्टूड एवरीवन. एनी क्वेश्चंस इन दिस. पहले इतना बोलो, कुछ क्वेश्चन है क्या इसमें. No. यस और नो. श्योर. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ आर गिविंग यू सिमिलर प्रोडक्ट्स. ठीक है. चलो कॉपी करो फटाफट से, फिर मैं इसके ऊपर तुम लोग को एक दो क्वेश्चन देती हूँ, सॉल्व करना. चलो दिख रहा है. फर्स्ट वाला ये देखो, ये क्या है. दिस इज योर कीटोन. दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल अमाइन. दिस इज OH group. It is called as hydroxyl, and this is amine. So what I'm going to do, just remove this OH, double bond NOH. So this is called as oxime. अभी सपोज मैंने एसिटल्डिहाइड लिया तो क्या बन जाएगा, एसिटल्डोक्साइम. एसिटोक्साइम. कीटोक्साइम. कीटोन लिया तो क्या बन जाएगा, कीटोक्साइम. समझा. ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं. समझा दिवेश. Understood everybody. Only you have to remove water, that's it. Okay, चलो फटाफट से कॉपी करो, फिर मैं तुम लोग को इसके ऊपर क्वेश्चंस देती हूँ, तो तुम लोग सभी में से वाटर रिमूव करना और मुझे बताना. पहले ऊपर के 3 लिख लो. देन आई विल पुट माय कैमरा डाउन. अंधेरा दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना ठीक से. आपको ये रिएजेंट्स याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में एल्डिहाइड तो सिंपल है, रिएजेंट याद रहेगा तो यू कैन इजीली राइट डाउन द प्रोडक्ट्स. Once you're done with first 3, let me know. I will keep my camera down.
डन। मैम नीचे वाला दिखाना आपका। दिख रहा है ठीक से? खाली तुम लोगों ने इतना भी लिखा तो वाटर रिमूव करके सेम प्रोडक्ट लिख सकते हो, इट्स वेरी इजी। कुछ नहीं समझेगा तो पूछो, हाँ, फिर मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ तुम लोग को। फिफ्थ वन, हाँ क्वेश्चन नहीं दिख रहा, एक्सप्लेन करूँ क्या? क्या बोल रहे हो दिवेश? 2,4 डाइनाइट्रो, देखो 1 2 3 4, 2,4 डाइनाइट्रो phenyl hydrazine, phenyl, and this is your hydrazine. So just remove the water and join everything as it is. देखो ये डबल बॉन्ड N, फिर ये NH, पूरा स्ट्रक्चर सेम है, so it is called as 2,4 diphenylhydrazone. That's it, हो गया। ये क्या पेजेस में गया फालतू, एक मिनट, हाँ समझा दिवेश? इजी है? ठीक है। वो यश है ना, उसने कल एक क्वेश्चन पूछा था मुझे, HC डबल बॉन्ड OH, CH3C double bond OH, CH3C double bond OCH3, and C2H5C double bond O C2H5। ठीक है, ये क्वेश्चन था उसका। सवाल ये था कि इन चारों में से सबसे पोलार बॉन्ड किस में होएगा, विच कंपाउंड इज मोस्ट पोलार? कौन सा रहेगा? मोस्ट पोलार बॉन्ड क्या लगता है तुम लोग को? चलो तुक्का तो तुक्का, क्या लगता है? पोलार मतलब चार्ज सेपरेशन किस में बहुत इजीली हो सकता है? अच्छा, ऋषि ने बोला कि फर्स्ट वाला, ठीक है, और प्रियंका ने बोला लास्ट वाला। ओके, बाकी के लोग 21 लोग हैं, एक मुझे छोड़ा तो 20 आंसर्स आने चाहिए मुझे। चलो मेजोरिटी क्या बोलती है, लेट्स सी। दिवेश कहता है कि लास्ट वाला, ओके। समृद्धि इज आल्सो सेइंग लास्ट। यश बोल रहा है कि फर्स्ट होगा। अच्छा ठीक है, और बीच वालों को क्यों छोड़ दिया? उन लोगों ने क्या गुनाह किया है भाई? लास्ट वाला, ओके। प्रगति इज आल्सो सेइंग लास्ट, अनुष्का इज सेइंग लास्ट, श्रुतिका इज आल्सो सेइंग लास्ट। देखो हाँ, मुझे बताओ कि इन दोनों में से ये दोनों क्या है? एल्डिहाइड, दिस इज आल्सो एल्डिहाइड, दिस इज योर कीटोन, दिस इज आल्सो योर कीटोन, ठीक है। विच बॉन्ड इट इज? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। You can easily donate hydrogen, you can easily donate hydrogen, so here the polarity will be more, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा पोलर है, मतलब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन, क्योंकि 14 ग्रुप में आया और ये फर्स्ट ग्रुप में आया, ठीक है। इस केस में सिर्फ एक ही जाएगा। इन तीनों के केस में देखो, कार्बन 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 बॉन्ड है, तो तीनों का पोलैरिटी तो सेम ही हो गया ना ऑलमोस्ट। और इसमें कैसे हो गया, दो कार्बन के बाद ये बीच वाला कार्बन, फिर दो कार्बन के पास, तो जैसे जैसे कार्बन चेन लेंथ बढ़ता है उसका पोलैरिटी कम हो जाता है। दिस इज द मोस्ट पोलर, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और दिस इज द लीस्ट पोलर।
आया समझ में? तो जिन लोगों ने फर्स्ट आंसर किया था कि पहला वाला सबसे मोर पोलर होगा, वो बराबर है। अंडरस्टूड? बिकॉज हियर वी आर हैविंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड में से कौन ज्यादा पोलर होएगा? ऑफ कोर्स ये, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग है कि नहीं? दिस इज प्रेजेंट इन द, यस, यश ने बराबर आंसर दिया था और ऋषि ने बराबर आंसर दिया था, करेक्ट। ये देखो ना, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन इज इन द फर्स्ट ग्रुप, दिस इज इन द 14th ग्रुप, है ना? ये हो गया, ये दोनों एक ही ग्रुप में है, तो इनका पोलैरिटी कम होएगा ना। पोलैरिटी कब ज्यादा होता है? व्हेन देयर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अभी समझा? तो ये मोस्ट पोलर हो गया, इसमें थोड़ा सा है, इसमें देखो कार्बन कार्बन कार्बन, बस यहाँ पे और कार्बन चेन बढ़ गया, सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज लीस्ट पोलर। समझा बच्चों? एकदम अच्छा क्वेश्चन था वो, मुझे कल यश ने पूछा था, पर वो आया नहीं अभी लेक्चर को शायद। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? समझा क्या? हम्म, ठीक है, चलो आगे बढ़े। अभी मैं क्वेश्चन दे दूं, इसके ऊपर तुम लोगों को ये पेज रेफर करना। आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस टू सॉल्व ऑन सेम थिंग। क्वेश्चन ये है आपका कि बहुत रिएक्शन बचे हैं अभी। हेलोफॉर्म, aldol condensation, Cannizzaro reaction, Wolff-Kishner reaction, Clemmensen reduction। क्या लिखा है दिवेश ने? मेनी हाइड्रोजन्स नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है ना बेटा। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड किसका देखना है अपने को? कार्बन और इसका देखना है, ठीक है। चलो अभी मैं क्वेश्चन देती हूँ कि आई हैव ओवर हियर CCH3CH डबल बॉन्ड O, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, which is treated with hydroxylamine NH2OH। Complete the following reaction। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए, draw the structure of semicarbazone of cyclohexanone। ये सेकंड हो गया, सेकंड नहीं, इसी का फर्स्ट हो गया, और इसका सेकंड आपको ड्रॉ करना है 2,4 डाइफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ एसिटल्डिहाइड। आएगा करने के लिए, you will get 5 minutes to solve this। Semicarbazone of cyclohexanone and 2,4 diphenyl hydrazone of acetaldehyde। These three answers आए हुए, ये तो बहुत सिंपल है। चलो फटाफट से आंसर दे दो मुझे। Are you able to solve yes or no? इतना बोलो पहले मुझे। हेलो? हाँ, आएगा ना। सेमी कार्बाजोन बनाओ, साइक्लोहेक्सेनॉन बनाओ, फिर साइक्लोहेक्सेनॉन का ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ बाहर निकालो, फिर एसिटल्डिहाइड बनाओ, एसिटल्डिहाइड का ये रहा स्ट्रक्चर, इसके साथ 2,4 डाइफेनाइल हाइड्रोजन ज्वाइन करो, आंसर लिखो। 5 मिनट में ही हो जाएगा। हो जाएगा तो मुझे बोलो, हाँ। नहीं आएगा तो भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल टीच यू।
अरे हो गया क्या? कितना टाइम? साइक्लोहेक्सेनॉन नहीं पता है ना तुम लोग को? हो गया मालूम है ना। मुझे। साइक्लोहेक्सेनॉन ऐसा रहता है। अभी कर सकते हो, सेमी कार्बाजोन बनाओ इधर। सेमी कार्बाजाइड आ जाएगा बस, सॉरी सेमी कार्बाजाइड लेंगे, सेमी कार्बा, हाँ। यस सिद्धेश, यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम। बाद में वीडियो देख लो। हो गया सबका? इज इट, वाज इट वेरी सिंपल? चलो अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, विच इज कॉल्ड एज हेलो फॉर्म रिएक्शन। अभी अपना क्या बचा है? हेलो फॉर्म, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनेजरो रिएक्शन, वुल्फ किर्चनर रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन, 5-6 रिएक्शंस और बचे। ठीक है, चलो। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। मिस ये फर्स्ट वाला दिखाओ ना एक बार। कौन सा वाला? ये सेमी कार्बाजोन वाला? यस मिस। देखो सेमी कार्बाजाइड क्या है अभी यहाँ पे? NH2 NHCO NH2, बस। यहाँ से ये श्रुति, यू कैन ऑल्सो लीव, नो प्रॉब्लम। वाटर निकल गया बाहर, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉन, डबल बॉन्ड N, NHCO NH2, सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन। दिस इज योर साइक्लोहेक्सेनोन, और इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। अच्छा सेकेंड वाला भी बताओ। एसिटल्डिहाइड इज CH3, ये हो गया H, ठीक है, डबल बॉन्ड O प्लस। नाउ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन अभी हमने ड्रॉ, तो इट वाज NH2 NH, देन दिस वाज द रिंग। ठीक है, दिस इज नाइट्रो ग्रुप, दिस इज आल्सो नाइट्रो ग्रुप। बस इसमें से खाली वाटर बाहर निकालने का, तो इट विल फॉर्म CH3, this is H, double bond N, NH, then after that you are going to draw over here NO2 and NO2. Okay Divesh? Clear everybody? हाँ, इजी था रिएक्शन। ये आता है 3-3 मार्क्स के लिए आता है, पता है। खाली अब अपने को प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग को रिएजेंट्स नहीं याद रहते, इसलिए गड़बड़ा जाते हैं अपन, क्योंकि रिएजेंट का स्ट्रक्चर नहीं याद रहता है ना। बाकी रिएक्शन में है ही क्या, वाटर ही तो रिमूव करना था। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। वी विल गो फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। अब ये रिएक्शन नंबर कितना है मुझे मालूम नहीं है, कितना नंबर है रिएक्शन? देख लो तुम लोग, लिख दो, मैं खाली स्टार कर देती हूँ। हेलो फॉर्म रिएक्शन, ठीक है। हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो मतलब क्या होगा बोले जल्दी? हेलो से क्या आता है? हेलोजन, ठीक है। सो इन दिस रिएक्शन हेलोजेंस आर इन्वॉल्व्ड। This reaction is generally given by acetaldehyde, all methyl ketones and all the alcohols containing CH3CO CHOH group। ठीक है, ये कौन कौन देता है? एसिटल्डिहाइड देता है, ठीक है।
ऑल द मिथाइल कीटोन्स, जितने भी कीटोन्स है उसके साथ मिथाइल ग्रुप होगा, तो ऑल द मिथाइल कीटोन्स एंड अल्कोहल्स विच आर कंटेनिंग CH3CHOH ग्रुप, ये रिएक्शन ये तीनों चीजें देते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस हेलोफॉर्म रिएक्शन? इन दिस हेलोफॉर्म में योर मिथाइल ग्रुप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. What is happening over here? Let's see. We have CH3, C double bond O, CH3. This is my acetone. I will treat it with 3 molecules of NaOI. ठीक है? What is this NaOI? It is called as sodium hypoiodide. इसका नाम क्या है? Sodium hypoiodide, TE. ठीक है? Sodium hypoiodide. अभी रिएक्शन कैसे हो जाएगा? You have to treat it in the presence of alkali and iodine, क्योंकि हमने यहाँ पे iodide लिया इसलिए iodine लेंगे, and just heat this. आपको मिलेगा आपका iodoform, that is CHI3. ये आपका PPT आ जाएगा. This is your iodoform. ठीक है, इसके साथ you will get some byproducts. यहाँ ऊपर लिखती हूँ, जगह नहीं है, ठीक है. तो CH3, C double bond O, ONA plus 2 molecules of NaOH. तो मेरा मेन प्रोडक्ट तो ये है. कैसे हो गया देखो, CH3 एंड I3 आ गया इधर, I3. उसके बाद क्या बचा? CH3 COONA आ गया, सॉल्ट. एंड देन आफ्टर दैट 2 molecules of NaOH. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज सोडियम एसीटेट. वापस से लिखते हुए रिएक्शन में पीछे. अभी सपोज मैंने यहाँ पे NaOCl लिया होता तो क्या लिखते? सोडियम हाइपोक्लोराइड. यहाँ पे भी क्या लिखते? क्लोरीन. मुझे क्या मिलता? क्लोरोफॉर्म. ठीक है. सपोज मैंने यहाँ पे लिखा होता Br, तो यहाँ पे भी क्या लिखते? Br2. तो उसको बोलेंगे सोडियम हाइपोब्रोमाइड, और मुझे यहाँ पे क्या मिलता था? ब्रोमोफॉर्म. आ रही है बात समझ में? सो यू कैन रिप्लेस दोज थिंग्स. बाकी बाय प्रोडक्ट तो सेम रहने वाला है, दिस एंड दिस. ओनली आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म यू आर गोइंग टू गेट. समझा रिएक्शन कितना इजी था? अंडरस्टूड? मिस सी उसको अगेन आई एम हाइपो क्यों सेइंग बोलेंगे? इट्स अ नेम, वो क्योंकि यहाँ हाइड्रो. पे ONA है. नहीं, हाइड्रो नहीं है, ऑक्सीजन है ना यहाँ पे. तो जब भी देखो हाइड्रोजन होता है तो क्या लिखते हैं? बाय लिखते हैं. वैसे ऑक्सीजन होता है तो हाइपो लिखते हैं. सोडियम हाइपो आयोडाइड. ठीक है. और ये कौन कौन ओके देता है? मिस. एसिटल्डिहाइड. अभी क्या बोलेंगे? हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन दिस? व्हेन द अल्कोहल और मिथाइल कीटोन इज वार्म्ड विद अल्कोहल और मिथाइल कीटोन और एसिटल्डिहाइड इज वार्म्ड विद NaOH solution. ठीक है. precipitate of iodine will form, sorry, sodium hydroxide and iodine. तो क्या मिलेगा अपने को? PPT of iodoform will form. इजी था रिएक्शन. अभी अगर सपोज मैंने दूसरा रिएक्शन लिखा है यहाँ पे, सेम रिएक्शन में लिख रही हूँ, देखो. सॉरी सॉरी सॉरी. चलो अभी मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे देखो. व्हाट आई एम राइटिंग, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन. अरे यार, अभी मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस NaOCl. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? NaOH, और यहाँ पे क्या लिखूँ? Cl2 एंड हीट. ये आपका प्रोडक्ट लिखना है. नेक्स्ट रिएक्शन इज CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस NaOBr, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NaOH, और यहाँ पे क्या लिखूँ अभी? Br2 एंड हीट. व्हाट इज द प्रोडक्ट? समझा? बाय प्रोडक्ट दोनों जगह सेम रहने वाला है, ओनली और मेन प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट. समझा बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज हेलोफॉर्म रिएक्शन. जो बनता है ना हेलोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, इज कॉल्ड एज दिस रिएक्शन. क्लियर? समझा? ये दोनों तुम लोग को लिखना है. पहले वाला कॉपी करो. किसी को कुछ पूछना है इसमें, इस रिएक्शन में? प्लीज फील फ्री टू आस्क इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग. एक मिनट, थोड़ा छोटा कर देती हूँ. चलो लिखो फटाफट से पहले ये. आयोडोफॉर्म, सोडियम एसिटेट, NaOH. कॉपी करो. हेलोफॉर्म रिएक्शन ये लिखना. दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एसिटल्डिहाइड
Methyl ketones and the alcohols containing this group. और जो मिथाइल ग्रुप क्यों चाहिए अपने को, आप पूछोगे मिस मिथाइल क्यों चाहिए, क्योंकि मिथाइल ग्रुप ही किस में कन्वर्ट होता है, हेलो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हो जाएगा तो बोलो। हाँ, डन एवरीबॉडी। Yes. ओके, चलो टर्न करती हूँ पेज दूसरे वाले का, दो और सेकंड और थर्ड दोनों का आंसर लिखो। एक में क्लोरोफॉर्म बनाओ, एक में ब्रोमोफॉर्म बनाओ। CHBr3 and CHCl3, ये रहा क्वेश्चन। हो गया क्या बच्चों? Yes, रिएक्शन ma'am. इज डन। ओके, चलो अभी नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, which is called as aldol condensation. चलो सब लोग पुट योर पेन्स डाउन, जस्ट सिट नाइसली, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सिंपल है। खाली देखने में अच्छा लगेगा कि बाप रे कितना बड़ा रिएक्शन किया, बट बहुत ही सिंपल है। रेडी एवरीवन? चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन, एकदम आराम से पढ़ाती हूँ, ठीक है। अल्डोल को अगर आपने सेपरेट किया तो हम लोग के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है एंड अल्कोहलिक ग्रुप है। इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया? अल्डोल ग्रुप, ठीक है। मीन्स इट इज कंटेनिंग एल्डिहाइड्स आल्सो एंड इट इज कंटेनिंग अल्कोहल आल्सो। व्हाट डू मीन बाय कंडेंसेशन? ये दोनों जॉइंट होते हैं और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है जनरली, ठीक है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, ठीक है। इस रिएक्शन को करने की कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, योर एल्डिहाइड शुड कंटेन at least 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब मुझे बताओ अल्फा कार्बन क्या होता है? सपोज मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा, एक वर्ड एक लिख देती हूँ, CH3 CH2 CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का पहला कार्बन इज अल्फा कार्बन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, समझा? तो क्या कंडीशन है?
Aldehyde should contain at least one alpha hydrogen atom. ठीक है. Second condition, we need over here diluted alkali such as diluted NaOH or KOH और सोडियम कार्बोनेट. अल्कली मतलब ऐसा सॉल्ट, ऐसा बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है. एंड जनरली दीज आर एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट. अल्कली का काम क्या है यहाँ पर? दे विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट. ये दोनों चीजें हो गई. अब जब आप इसका रिएक्शन करोगे तो आपको जो पहला प्रोडक्ट मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड फाइनली यू विल गेट ओवर हियर अल्कोहल. पहले अल्कोहल मिलेगा, अल्डोल मिलेगा. रिएक्शन कैसे होता है? अल्डोल मिलता है, अल्डोल से हम लोग को मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. मैं बताती हूँ क्या ये सब. कंडीशन समझा? व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन? सो अल्डोल कंडेंसेशन इज एल्डिहाइड which is containing at least one alpha hydrogen atom undergoes reaction in the presence of diluted alkali such as sodium hydroxide, KOH or sodium carbonate, gives the formation of alpha beta hydroxy aldehyde. Aldol का मतलब क्या होता है? It is called as beta hydroxy aldehyde. This reaction is known as अल्डोल कंडेंसेशन. मुझे पता है अभी तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, बट इतना समझा, ये समझो, ये कंडीशन समझो. अल्डोल का मतलब क्या? एल्डिहाइड एंड अल्कोहल्स आर टुगेदर. We need aldehyde which is having at least one alpha hydrogen atom, and the reaction is going to be happen in the presence of catalysts such as NaOH, KOH और sodium carbonate. अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्डोल which is called as beta hydroxy aldehyde. बट ये अनस्टेबल होता है, इसलिए हम लोग को मिल जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स. ठीक है. अब मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. एक ही सेकंड देना मुझे जरा. देखो मैं क्या करूंगी यहाँ पे. आई एम गोइंग टू टेक ओवर हियर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल कैसे लिखेंगे देखो, मैं एग्जांपल के साथ ही बता रही हूँ. वी हैव CH डबल बॉन्ड O. ठीक है. प्लस HCH2 C डबल बॉन्ड OH. दोनों भी इथेनॉल है, सिर्फ लिखा मैंने अलग है. दिस इज ऑल्सो इथेनॉल, दिस इज ऑल्सो इथेनॉल है. देखो 1 2 कार्बन, CH3 CHO, ये भी CH3 CHO है. ठीक है. चलो अभी एक एल्डिहाइड के पास मेरे अल्फा हाइड्रोजन एटम है. ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप का पहला कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन. I am going to treat it in the presence of diluted NaOH. ठीक है. रिएक्शन कैसे होगी देखो आप बच्चों. ये CH3 था. अच्छा मैं नीचे लिखती हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए. इधर लिखती हूँ. चलो कैसे होगा रिएक्शन देखो. ये CH3 है, इसको ऐसे लिख दिया. फिर क्या है मेरे पास? CH, ये ले लिया मैंने CH. ठीक है. उसके बाद ये जो H है ना बच्चों, ये H ये डायरेक्टली O के साथ चला जाएगा. आ गया ये H इसके साथ. अब ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली किसको ज्वाइंट हो जाएगा? अल्फा कार्बन को ज्वाइंट हो गया. मतलब CH will join to CH2 and then CHO. ये इतना समझा कि नहीं? पहले बोलो. अरे यार ये मेरे पेपर्स ना बहुत फालतू है, उड़ रहे हैं बार बार. ठीक है. देखो क्या हो गया, मैंने क्या लिया. आई हैव टेकन ओवर. एकदम ध्यान से, एकदम आराम से देखो, कोई भी घाई नहीं है. व्हाट आई सेड, दिस इज माय इथेनॉल है ना, CH3 CHO. दिस इज आल्सो CH3 CHO. इसमें अल्फा कार्बन एटम है. यस. अल्फा हाइड्रोजन एटम है. यस. हो गया. क्या किया मैंने यहाँ पे, ये OH, ये जो H है, ये H इसके साथ नीचे आ गया. CH को ऐसे ही रखा. अब ये कार्बन इसको डायरेक्टली अटैच करेगा. ये कार्बन इसके अल्फा को अटैच करेगा. फंक्शनल ग्रुप विल अटैच टू द अल्फा कार्बन. ये हो गया. इसको क्या बोलेंगे पता है? बीटा हाइड्रोक्सी. वाई बीटा हाइड्रोक्सी बोलो मुझे. ये देखो ये अल्फा था. हाँ था ना अल्फा, ये बीटा था. तो क्या बोलेंगे इसको? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. और इसी को कहा जाता है अल्डोल. क्यों अल्डोल है बोलो मुझे. देखो OH दिख रहा है और यहाँ पे एल्डिहाइड भी दिख रहा है. इट इज कॉल्ड एज अल्डोल. इसका IUPAC नेम बताएगा मुझे कोई? व्हाट इज IUPAC नेम? 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी बोलो.
ब्यूटेनल, है ना, 3 यस हाइड्रोक्सी मिस। ब्यूटेनल। यस और नो? ये यहाँ तक समझा कि नहीं? पहले इतना बोलो, समझा बच्चों? अब देखो यस क्या मैम। होएगा। हाँ, अब क्या करने का, ये जो अल्फा कार्बन है ना, इधर से एक हाइड्रोजन ले लेने का और यहाँ से OH भी ले लेने का। बाहर क्या निकाला? वाटर, रिमूव वाटर। मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3CH, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा? देखो, सॉरी जरा मेरा पेपर उल्टा सुल्टा हिल रहा है, इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। चलो ये देखो, अब ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा? इट विल बी लाइक दिस, CH3CH, डबल बॉन्ड, CH CHO। क्योंकि यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया? वाटर। समझा? अल्फा और बीटा के बीच में से वाटर निकाला ना, समझ रहे हो? तो इसका नाम क्या? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, नो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ऐसे क्यों बोला मैं? दिस इज अल्फा, दिस इज अनसैचुरेटेड। किसी ने मतलब इसका फटाक से, ब्यूटूल। यस और नो? इट्स IUPAC नेम इज ब्यूट 2 इनल। वाई 2? फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे। ये है आपका अल्डोल कंडेंसेशन। कितना सिंपल था। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। आया समझ में? अल्डोल कंडेंसेशन वापस से बताती हूँ। देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया था अच्छे से। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है विच इज अल्डोल। बीटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी भी आया और एल्डिहाइड भी आया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन। इट्स IUPAC नेम इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसमें से वाटर निकालना है, अल्फा बीटा में से वाटर निकालने का। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, उसके बाद क्या आता है? गामा, उसके बाद क्या आता है? डेल्टा, फिर खत्म, उसके बाद कुछ नहीं आता है। तो H यहाँ से गया, OH यहाँ से गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड which is butanol. This is your aldol condensation. समझा? समझा क्या बच्चों? यस मैम। हाँ ठीक है, तो लिखो अभी फटाफट से, इतना कॉपी करो पहले, फिर मैं कीटोन का भी बताती हूँ। पहले इतना लिखना, कहाँ तक पता है? यहाँ तक लिखो, फिर मैं अल्डोल कंडेंसेशन का ना डेफिनेशन देती हूँ, फिर रिएक्शन लिखो। ये स्टेप्स है, अपने को ये चाहिए, ये चाहिए, ये बनेगा और ये फाइनल बनेगा। इतना लिखो जहाँ तक पेन का मार्क किया है, फिर मैं आपको डेफिनेशन देती हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए आता है। डन क्या बच्चों, दिस मच पार्ट? ओके, चलो लिखो। राइट डाउन, when
when aldehyde containing aldehydes, क्योंकि दो लिया ना, when aldehydes containing at least one alpha hydrogen atom, at least one alpha hydrogen atom undergo a reaction, undergo a reaction in the presence of, in the presence of diluted alkali, diluted alkali such as diluted NaOH or KOH or sodium carbonate, such as diluted NaOH or KOH or sodium carbonate as a catalyst, as a catalyst to form, as a catalyst to form beta hydroxyaldehyde, ब्रैकेट में लिखो aldol, beta hydroxyaldehydes, in bracket write down aldol. The reaction is known as, the reaction is known as aldol condensation. The reaction is known as aldol condensation. Next line लिखो. This aldol undergoes elimination of water molecule. This aldol undergoes elimination of water molecule on warming, on warming, to give alpha beta unsaturated aldehyde, to give alpha beta unsaturated aldehyde. यहाँ तक समझा? अभी कीटोन का करेंगे, तो कीटोन से क्या बनेगा? अल्डिहाइड और अल्कोहल का बना अल्डोल, तो कीटोन और अल्कोहल का क्या बनेगा? बोलो जल्दी. कीटोल. वेरी गुड. टर्न करो पेज बच्चों. रिएक्शन हो, अरे हाँ तुम लोग का रिएक्शन बाकी है. आई एम सो सॉरी. लिखो लिखो. मुझको लगा रिएक्शन हो गया. देखो हाँ, ये ऐसा है. ये आपका इथेनॉल है, ये एरो है, ये प्रोडक्ट है मेन वाला अल्डोल वाला, और उसके बाद वाटर रिमूव करके ये प्रोडक्ट है, ये इसका नाम है. ठीक है, अच्छे से लिखना समझ के. हो जाएगा तो डन लिखो चैट बॉक्स में.
ओके, मुझे लगता है काफी लोगों का हो गया लिख के। नहीं मैम। ओके ओके, लिखो लिखो। शाम को भी लेक्चर है 7:30 to 9, याद है ना सबको? टुडे इवनिंग 7:30 to 9 PM। ओके, रेगुलर लेक्चर रहेगा। कल आपका रिवीजन रहेगा 7:30 to 8:30। एक 7 बजे या 6:30 ना सर को याद दिला देना, बीरेन सर को। ठीक है, मैंने तो उनको किया है, पूरा टाइम टेबल भेजा है, बट फिर भी एक बार तुम लोग बीरेन सर को याद दिला देना 6-6:30 के आपका 7:30 को लेक्चर है। ठीक है, रेगुलर लेक्चर सर के पास है टाइम टेबल वैसे। हम सेकंड डन स्टेप क्या बताओ बच्चों, ना। एवरीवन? क्या क्या सेकंड स्टेप क्या बताओ करूँ? ना। ये वाला? हाँ मैम, और मैम ब्लर दिख रहा है। हाँ, अभी देखो, अभी दिख रहा है ठीक से? नो। सबको ब्लर दिख रहा है? हाँ मैम ब्लर हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ जरा। अभी देखो। हाँ दिख रहा है। देखो, व्हाट इज द सेकंड स्टेप हियर? ये पता चला बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कैसे आया। नाउ वी आर गोइंग टू रिमूव द वाटर, सो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, सो वी विल रिमूव H फ्रॉम हियर एंड OH फ्रॉम हियर। तो ये डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो गया, बस मैंने वही लिखा। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। समझा? यस सर। हाँ, ठीक है। चलो अभी कीटोन का बताऊं। अभी कीटोल बनाएंगे, कीटोल। एक मिनट, पेज टर्न कर लो। इसके बाद है ना, क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड्स लेते हैं। अभी कैसे दोनों इथेनॉल लिया, कीटोन लेंगे तो दोनों एसीटोन लेंगे। बट अभी मैंने सपोज एक एल्डिहाइड लिया और एक कीटोन लिया, या फिर दो अलग अलग कीटोन लिया, मतलब एक एसीटोन लिया एक ब्यूटेनोन लिया, तो उसको बोलेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। बाद में, अभी पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, कीटोन वाला। ठीक है, चलो। तो दिस इज CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हो गया आपका प्रोपेनोन प्लस CH, रुको कैसे लिखा था इसको, CH2, सपोज ये H है, और फिर ये था C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये भी क्या है आपका, प्रोपेनॉन है। इसको ऊपर लिखना चाहिए था क्या? नहीं, ठीक है चलो। तो ये क्या हो जाएगा, अभी डाइल्यूटेड NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग। सो व्हाट इज माय अल्फा कार्बन, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। एक मिनट रुको जरा, कुछ तो गड़बड़ हो गया इधर। CH3, इसका OH इधर लिया, इसको ऊपर लिखा। कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया क्या मैंने इसमें? नहीं ना? एक मिनट रुको बच्चों, प्लीज लेट मी चेक। हाँ हाँ, बराबर है बराबर है। चलो अभी कैसे होएगा पता है क्या, ये जो H है ना, ये H देखो, ये आपका अल्फा कार्बन है। एक्चुअली ये भी अल्फा ही है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये अल्फा है। ठीक है, दिस हाइड्रोजन विल गो विद दिस ऑक्सीजन। तो कैसे बनेगा, अभी CH3C, CH3 ऊपर लिखा,
और ये OH नीचे लिखा, इतना समझा? ये CH3 ऊपर गया और इसको नीचे लिखा OH के साथ। अब ये जो कार्बन है, इट विल डायरेक्टली गो एंड जॉइन विद दिस अल्फा, तो क्या बन गया ये CH2, देन C डबल बॉन्ड O, CH3। ये समझा कि नहीं, पहले बोलो yes or no? Yes. This is also acetone, this is also acetone, this is alpha। ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चों, ये जो CH3 था इसको ऊपर लिख दिया, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये OH को नीचे लिख दिया। now this carbon, ये तो चला गया ना ऊपर नीचे, this carbon will go and join with this, तो this is CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब इसका नाम क्या है बोलो जल्दी से, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा है, तो इसका नाम क्या आएगा, बीटा हाइड्रोक्सी। इसमें क्या देता है, एक मिनट देखती हूँ कीटोन में क्या देता है। This is a ketal. What is IUPAC name of this? This is 1 2 3 4, so 4 hydroxy, 4 methyl, am I right? देखो 1 2 3 4 5, so 4 hydroxy, 4 methyl, फिर क्या आ जाएगा, पेंट पेन पेंटेन, सॉरी मैंने क्या, पेंटेन 2 ओन, बराबर है। ये भी क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है ना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कीटोल, करेक्ट ना। OH है और ये है। अब इसमें से वाटर निकालो बाहर, किधर से वाटर निकालेंगे, इधर से H और इधर से OH, तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। व्हाट इज द रिएक्शन नाउ, CH3 C, H तक H है, क्या है वो, H है ना सिर्फ, C CH3 डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3, तो ये क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इसका यूपीएससी नेम क्या आएगा, 1 2 3 4 5, सो ये हो जाएगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट 1 2 3, पेंट 3 इन 2 ओन, समझा, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, समझा क्या। दिस इज कॉल्ड एज कीटोल। व्हाई कीटोल, बिकॉज यू आर हैविंग OH also and ketonic group also। किसको नहीं समझा बोलो फटाक से, क्लियर एवरीबॉडी, हेलो। पीछे सेकंड वाला भी। ये वाला, हाँ मिस। हाँ देखो ना, ये Yes. अल्फा है, दिस इज बीटा, यहाँ से H निकाल दिया तो क्या बचेगा देयर, CH, और यहाँ से OH निकाल दिया तो यहाँ पे सिर्फ C बचेगा ना, मैंने CH लिख दिया, हाँ बराबर लिखा है, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, तो C, ये देखो CH3 C CH3, CH3 C CH3, इधर डबल बॉन्ड आ गया, फिर ये अरे CH आएगा ना, आई एम सो सॉरी, बराबर है बराबर है, दिस इज CH C डबल बॉन्ड O CH3, समझा, Yes यश, मिस। हाँ ठीक है, चलो लिखो इतना पहले, पहले कॉपी करो फटाफट से, ये उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे, इतने के पूछो मत। अब मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ उसके ऊपर, बेंजाल्डिहाइड वाला, तुम लोग को मुझे सेम तरीके से सॉल्व करके देना है। कुछ नहीं समझा होगा तो पूछो।
मीन्स कैमरा थोड़ा ऊपर लो ना। हाँ, एक मिनट। हाँ, आई होप सबको समझाइए। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड सिर्फ सी एच है, क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका वैलेंसी कंप्लीट हो गया। हो गया क्या बच्चों? इजी है? समझ में आ गया तो इजी लगेगा, नहीं समझ में आया तो ऐसा लगेगा अरे क्या किया मैंने, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा होगा। चलो अभी मैं तुम लोग को सिखाती हूँ क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। आज उतना ही करेंगे क्रॉस अल्डोल तक। शाम को हम लोग करेंगे कैनिजरो, क्रॉस कैनिजरो। अगर टाइम मिला तो हो जाएगा क्लेमेंसन, ये हो जाएगा। मुझे लगता है रिएक्शंस हो जाएंगे शाम तक एल्डिहाइड कीटोन्स के। कल फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस करेंगे, बहुत सारे हैं, 2-3 लेक्चर लगेगा उसके लिए भी। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, एक मिनट। हाँ, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स और 2 डिफरेंट कीटोन्स और एल्डिहाइड प्लस कीटोन्स आर यूज्ड। समझा? एल्डिहाइड दोनों चलेगा, लेकिन दोनों भी एल्डिहाइड अलग होना चाहिए। जैसे एक इथेनॉल हुआ तो एक प्रोपेनॉल होना चाहिए। कीटोन भी अलग अलग होना चाहिए, एक अगर प्रोपेनॉन है तो दूसरा ब्यूटेनॉन होना चाहिए। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऐसे अलग अलग होंगे, तो इट इज कॉल्ड एज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। एंड हियर यू आर गोइंग टू गेट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने लिया एल्डिहाइड नंबर 1, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। एल्डिहाइड नंबर 2, तो पहले कैसे होगा पता है? 1 + 1 एक प्रोडक्ट आएगा, 2 + 2 दूसरा प्रोडक्ट आएगा, 1 + 2 तीसरा प्रोडक्ट आएगा, 2 + 1 चौथा प्रोडक्ट आएगा। ऐसे 4 प्रोडक्ट आएंगे। आया समझ में मैंने कैसे बोला? 1 + 1 पहला प्रोडक्ट, 2 + 2 दूसरा प्रोडक्ट, 1 + 2 एंड देन 2 + 1, ऐसे टाइप के 4 प्रोडक्ट आते हैं। समझा? पहले लिखो, write down if both aldehydes, हाँ बराबर बोला दिवेश, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जैसा, करेक्ट। बताती हूँ मैं, उसके डायरेक्ट प्रोडक्ट्स लिखेंगे, उसका मेन जो कैसे रिएक्शन होगा तुम लोग मुझे लिख के शाम को दिखाना। लिखो, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, when the reaction is taking place between, when the reaction is taking place between 2 different aldehydes or 2 different ketones or aldehydes and ketones containing 2 alpha hydrogen atoms or aldehydes and ketone containing
2 alpha hydrogen atoms each. Then the mixture of products are formed. और कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4. Then the mixture of 4 products are formed when the reaction is taking place between 2 different aldehydes or 2 different ketones or aldehyde and ketones containing 2 alpha hydrogen atoms each. Containing 2 alpha hydrogen atoms each. Then 4 different products are formed. Then 4 different products are formed. This is called as cross-aldol condensation. Cross-aldol condensation. अभी मैं आपको ना एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? अभी वो तुम लोग खुद एनालिसिस करना कि कैसे आया। जैसे हम लोग कैसे अल्फा बीटा एलिमिनेट करके, तो मैं खाली फाइनल लिखूंगी, जो अनसैचुरेटेड वाला है ना वो लिखूंगी। आया कैसे वो तुम लोग लिखेंगे खुद से घर पे बैठ के और शाम को मुझे बताएंगे। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है इथेनॉल CH3 C double bond OH. This is the ethanol. When it is combining with propanol CH3 CH2 C double bond OH. प्रोपेनल। इसके ना बच्चों हम लोग को 4 डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे। इसको ट्रीट करना है डाइल्यूटेड NaOH के साथ एंड ऑल्सो यू हैव टू हीट। ठीक है, तो जो पहला प्रोडक्ट आएगा इथेनॉल प्लस इथेनॉल होगा और प्रोपेनॉल प्लस प्रोपेनॉल होगा। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? इथेनॉल प्लस इथेनॉल, प्रोपेनॉल प्लस प्रोपेनॉल। अभी इथेनॉल प्लस इथेनॉल कितना कार्बन आएगा? 4 आएगा। प्रोपेनॉल प्लस प्रोपेनॉल कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, देखो बताती हूँ कैसे होएगा। तो पहला प्रोडक्ट आएगा CH3। तुम लोग शाम को सॉल्व करके बताना कैसे आए। CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये जो साइड का लिख रही है सेल्फ कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन मतलब आपस में ही ज्वाइन हो रहे हैं। ये इसका पहला प्रोडक्ट है। इसका नाम क्या है? ब्यूट टू इनल। इसी के साथ एक और प्रोडक्ट मिलेगा, उसका नाम रहेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम है 2 मिथाइल पेंट टू इनल। ये सेल्फ कंडेंसेशन था, मतलब इथेनॉल प्लस इथेनॉल, प्रोपेनॉल प्लस प्रोपेनॉल। समझा? मतलब कैसा आएगा पहला रिएक्शन पता है क्या? CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये पहले वाले का है। तुम लोग लिखोगे कैसे आया वो। और दूसरा कैसे किया है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। समझा? तो ये जो आंसर आएगा ये सेकंड वाले का आएगा। तो पहले अल्डोल बनाना दोनों का और फिर सॉल्व करना। और यहाँ पे हो जाएगा अभी क्रॉस कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे होएगा? एक मिनट। यहाँ पे करेंगे क्रॉस कंडेंसेशन। तो क्रॉस कंडेंसेशन कैसे होएगा बच्चों? CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड OH। मतलब यहाँ पे कैसे लिया? पहले अपना ये लिया क्या, इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल लिया। इसका नाम क्या आएगा? 1 2 3 4। So it is 2 methyl
पेंट टू इनल। और ये तीसरा प्रोडक्ट है। चौथा प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोपेनल प्लस इथेनॉल, उल्टा जाने का रहेगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O H। This two methyl, sorry, pent 2 enol, I'm so sorry, pent 2 enol। समझा? तो ये वाला कैसे था? थर्ड वाला इथेनल, इथेनल प्लस प्रोपेनल। और चौथा वाला क्या था? प्रोपेनल। ऐसे करके 4 प्रोडक्ट्स आएंगे। समझा? दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। लिखो। और सब कैसे रिएक्शंस आए थे, जैसे मैंने अभी सिखाया कि एक अल्फा दूसरे कार्बन को अटैक करेगा और पहले कीटोल बनेगा फिर अल्कोहल बनेगा, वैसे टाइप का लिखना है। रुका लिखोगे ना शाम को? समझा मैंने क्या बोला है? यस और नो? हेलो? ठीक है, लिख लो इतना पूरा अच्छे से लिख लो। और मुझे लगता है इतना बस हो गया आज के लिए ना, तुम लोग को लिखने में भी 5-10 मिनट जाएगा। क्या नहीं तो रोज शाम को पढ़ेंगे। एक काम करो, पहले इतना लिखो और पहले ये साइड कॉपी करो, तो तुम लोग को अच्छे से दिखेगा। ऊपर पढ़ोगी ना तो ब्लर होता रहेगा। हाँ हाँ, यस करना है, यू कैन लीव। आई होप आज का लेक्चर सबको समझ में आया अच्छे से। अच्छा है ना? रिएक्शन ऐसे बोरिंग नहीं है। क्या लगता है तुम लोग को? यस यस करना है, यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम। बोरिंग है दिवेश। अभी अपना बाकी है कैनेजरो, क्रॉस कैनेजरो, क्लेमेंसन, वोल्फ किश्नर। 4 और बाकी है। और एक इलेक्ट्रोफिलिक है, 5। शाम को हो जाएगा ये इतना। कितना बड़ा चैप्टर है, इसके बाद मैं इजी लेती हूँ। हाँ, तुम लोग एकदम पक जाओगे। रिएक्शन रिएक्शन। अभी हम पेज नंबर 273 पे हैं बच्चों। अपना पेज नंबर 273 कंप्लीट हो गया। डन? लेफ्ट साइड इज डन? सबका हो गया? राइट साइड पे फिर करती हूँ कैमरा। डन बच्चों?
फिनिश्ड और नॉट, रिप्लाई तो करो। यस मैम, डन। हाँ, अभी ये वाला कॉपी करो, क्रॉस कंडेंसेशन। यही करो। हाँ, 3 and 4 ये समझने के लिए दिया है कि कैसे जॉइंट हुआ है। लिखना है तो लिख लो, कोई इशू नहीं है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। कुछ डाउट नहीं है किसी को? अच्छे से पढ़ाई करो, रिएक्शंस रिवाइज करते रहो। डन। हाँ, जिनका कॉलेज का लेक्चर है वो जा सकते हैं बच्चों। मैं भी अभी 5 मिनट आज जल्दी छोड़ दूंगी। ऊपर का करो। क्या क्या ऊपर करूँ? ओके। 11:55 को आज मैं छोड़ दूंगी आपको, ठीक है? 5 मिनट जल्दी। जाओ जी लो अपनी जिंदगी 5 मिनट जल्दी। वेलकम। बाय कशिश। आज बहुत तरह रिएक्शन किया है ना। कौन सा लास्ट वाला बताऊं? देखो, इथेनॉल लिया एंड प्रोपेनॉल लिया, करेक्ट? सो इथेनॉल कैसा है? CH3 CH डबल बॉन्ड O, एंड प्रोपेनॉल है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। सॉरी, इधर H लिखना चाहिए था ताकि इजी पड़ता। H डबल बॉन्ड O। अभी देखो, हाँ, इसका अल्फा कार्बन एटम कौन सा है ना? अल्फा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ, और इसका जो हाइड्रोजन है मतलब ये कैसे हो जाएगा? CH2H, फिर हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये H किसके साथ ज्वाइन हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये H जाएगा इसके साथ। और ये H आ जाएगा नीचे। तो मेरा रिएक्शन कैसे हो जाएगा? देखो, CH3CH लिखा, हाँ, OH नीचे आ गया, ठीक है? ये कार्बन किसको अटैक करेगा? अल्फा कार्बन कौन सा है? ये वाला ना, इसको अटैक करेगा। तो ये हो जाएगा CH2, और ये नीचे आएगा CH3। समझा क्या? ये CH3 नीचे आएगा क्योंकि अल्फा कार्बन ये है। फिर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH। समझा? फिर क्या है? ये अल्फा, ये बीटा। तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH3C डबल बॉन्ड OH। देखो आया ना ये वाला? समझा प्रगति? हाँ मिस। ऐसे ये वाला करने का, इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल करने का। कैसे क्या समझा क्या? ये देखो, ये किसको ज्वाइन होगा? अल्फा को ज्वाइन होगा। तो इसके जो ये सब कंपाउंड्स है ना, इसको सबको ऊपर नीचे कर देने का। ये नीचे चला जाएगा इसके पास, इसको इसको ज्वाइन करने का। ये वाला बताया मैंने। ये कौन सा वाला बताया? थर्ड वाला बताया। थर्ड वाला, फोर्थ वाला तुम लोग करना, ठीक है? दूसरे केस में क्या होगा? पहले ये आएगा, बाद में ये आएगा, बाकी कुछ नहीं है।
I hope it is very, very clear for everybody. Any questions, any doubts in today's lecture? अभी ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है, शाम को पढ़ेंगे 7:30 को वी विल मीट शार्प। कुछ पूछना है को? गिव मी अ क्विक रिप्लाई, कम ऑन। मिस ये इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मिस, इसमें ये मिस बताओ ना। कंफ्यूजन हो रहा है ये मिस, ये अल्फा कार्बन एटम को जान हो रहा है ना। हाँ, क्योंकि देखो अभी फटाक से नहीं आएगा, पहले जो मैंने आज सिखाया ना अल्डोल कंडेंसेशन लिख के समझो। उसके बाद देखो ये वाला तो हमने रिएक्शन में ही किया है, ब्यूटेनॉल टू मिथाइल पेंटोइनॉल, ये तो डायरेक्ट है, सेम है। यहाँ पे कैसे किया, इथेनॉल था, ये मेरा क्या था, प्रोपेनॉल था, ठीक है। व्हाट इज अल्फा कार्बन एटम, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो पहला कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, करेक्ट। अभी ये जो कार्बन है वो इसको ज्वाइंट होना है, तो ये एच ओ के साथ चला गया, नीचे आ गया। अब इसका क्या करेंगे, इसको तो ठिकाने लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे ये सी को ये CH2 के साथ ज्वाइन करना है, तो मैंने CH2 लिख इधर पे, CH3 क्या करूं, नीचे लगाऊंगी, फिर ये C डबल बॉन्ड हो H, बाद में अल्फा बीटा ये रहा, तो यहाँ से H निकालो, यहाँ से OH निकालो, ये डबल बॉन्ड हो गया, बाकी सब सेम है। समझा अभी? फोकस क्या करना है कि मुझे मेरे डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अल्फा कार्बन से ज्वाइंट करना है, तो उसके बीच में रास्ते में जो भी आएगा सबको ठिकाने लगा देने का। समझा अभी यश? हाँ मिस। ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी शाम को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इथेनॉल प्लस इथेनॉल का रिएक्शन लिखा था ना यश, दिवेश, पहला एग्जाम्पल जो लिया था वो इथेनॉल प्लस इथेनॉल ही था ना, एकदम पहला एग्जाम्पल देखो अल्डोल कंडेंसेशन का, एकदम पहला एग्जाम्पल। अल्डोल कंडेंसेशन के डेफिनेशन के नीचे जो रिएक्शन लिखा था वो इथेनॉल प्लस इथेनॉल का ही है। हाँ दिवेश, याद आया? वही है ना रिएक्शन, हाँ ठीक है, वही सेम रिएक्शन है ये। करो तुम लोग ट्राई, नहीं आएगा तो आई विल टेल यू इन द इवनिंग, डोंट वरी, आई एम हियर टू टीच यू। ये ट्राई करो एक बार कैसे आता है, ये आंसर लाने का है अपने को, तो घुमाओ ना उसको कैसे भी, आंसर तुम्हारे सामने है, ट्राई तो करो, ठीक है। चलो मिलते हैं इवनिंग में 7:30 को, हाँ चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।